Hello everyone. Today I am going to talk about the topic food security. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ खाद्य सुरक्षा के बारे में। यह टॉपिक बीएड सेमेस्टर 4 के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर में इशूज ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन के अंतर्गत यूनिट 2 में है। खाद्य सुरक्षा दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी की जब कभी बात करते हैं तो भारत में 1966 की अकाल की समस्याएं जो घटित हुई थी, जो संकट आया था, वो चीज़ें स्पष्ट तौर पर याद आती हैं। तो भारत सरकार इस परिप्रेक्ष्य में इस आधार पर देखते हुए खाद्यान्न की समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर तरह तरह की योजनाएं लें और ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, इसका एक आधार था। वर्तमान समय में खाद्य यानी खाद्यान्न की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और प्रत्येक भारतीय को भोजन मिले, दैट मीन्स ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया, दैट मीन्स टू टेक ए एडाक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, यानी जो भोजन की जो बैलेंस अमाउंट है, जो संतुलित आहार है, वह सभी को मिले, ये परम सबसे ऊपर लक्ष्य रखा गया है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल को पास किया, कानूनी तौर पर लीगल तरीके से इसे एक कानून का रूप दिया, जिससे कि भारत में कोई भी भूखा न रहे। बीएड के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर में इस विषय वस्तु, इस टॉपिक को शामिल करने का एक ही ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य है कि आप प्रशिक्षु शिक्षक खाद्य सुरक्षा यानी भोजन की जो सिक्योरिटी है, भोजन जो एक ऐसी वस्तु है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, उसके महत्व को समझें और साथ ही साथ उसकी उपयोगिता को सभी बच्चों को बताएं और समझाएं। भोजन अगर किसी व्यक्ति को न मिले तो ये सबसे बड़ी, वो भी संतुलित आहार न मिले तो बहुत बड़ी विकट समस्या होती है। तो ये सभी को मिले, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह कानून पारित किया था। तो एक्चुअल में सबसे शुरू में हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत वीडियो लेक्चर के द्वारा ये पहले समझें कि फूड सिक्योरिटी यानी खाद्यान्न सुरक्षा क्या है, इसका क्या महत्व है और कैसे भारत में लीगल तौर पर यानी कानूनी तौर पर इसको लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में अब मैं आपसे विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। Now, first describe in English food security. Food security is the ability to assure on a long term basis that the system provides the total population access to a timely, reliable, and nutritionally adequate supply of food. Food security is a measure of the availability of food and individuals' ability to access it. Affordability is only one factor. Food security, as defined by United Nations Committee on World Food Security, means that all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life. Next, components of food security. It is the most important and vital. The five main or major components of food security, such as availability of food, in the sense that means how you have to available food for each and every individual. That means on the basis of the process of cultivation and on the basis of the process of storage, we have to provide food for all person. Access to food, that means how you have to reach the or capture the food. Utilization of food, how you have to usage food, that means to take a adequate amount of balanced food, that means get
carbohydrates, protein, fats, vitamins, and so on. Stability and malnutrition. If you have to not take adequate amount of food, leads to the problem malnutrition. Importance of food security in India. The Food and Agricultural Organization FAO states that food security emerges when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Food security exists when all people have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs for an active and healthy life. The term food security is being used more frequently in recent years, with the government putting greater emphasis on its importance. In 2013, the Indian government passed the National Food Security Act or Bill NFSA, which specifies that all Indians have the right to food security. The NFSA is one of the world's largest social security programs, and 810 million Indians are eligible to purchase the food that it provides. अब मैं इसे थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा एक दीर्घकालीन आधार पर आश्वासन देने की क्षमता है कि प्रणाली कुछ कुल आबादी को समय पर विश्वसनीय और पोषण की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करती है। खाद्य सुरक्षा भोजन की उपलब्धता और इसे आकलन करने के लिए व्यक्तियों की क्षमता का एक उपाय है, और एफोर्डेबिलिटी इन द सेंस दैट मीन्स सस्तीता केवल एक कारक है। दैट मीन्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, एफोर्डेबिलिटी, एफोर्ड। खाद्य सुरक्षा, जैसा कि विश्व खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा परिभाषित किया गया है, एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन का अर्थ है कि सभी लोग हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच रखते हैं, जो उनकी खाद्य प्राथमिकताओं और आहार संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। खाद्य सुरक्षा के 5 घटक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, भोजन की उपलब्धता, यानी कैसे सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। किस प्रकार से लोगों के पास भोजन पहुंचाया जाए, उपलब्ध हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। नेक्स्ट में आता है भोजन तक पहुंच, यानी कौन सी योजना, कौन सी प्रोसेस, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि सभी लोगों को तक भोजन पहुंच हो सके। नहीं वो लोग मार्केट में अगर इतना रेट अगर हाई हो जाएगा तो लोगों के पास वो भोजन नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि भोजन को प्लान या स्टोरेज ऐसे किया जाए समय समय पर। जो आर्थिक स्थिति या किसी कारण से अकाल पड़ता है तो भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती, तो इस अवस्था के लिए कैसे स्टोरेज करके उसे रखा जाए, आवश्यकता के हिसाब से बाजार में उपलब्ध कराया जाए। भोजन तक पहुंच, यानी ऐसे रेट उसके निर्धारित किए जाएँ, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा रेट तय किए जाएँ, जिससे कि सभी के पहुंच तक भोजन हो। अब अगर उससे रेट लोगों की जो इनकम है उसके अनुसार अगर बहुत ज़्यादा हाई रेट होगा तो फिर वो सभी लोगों के पहुंच की से बाहर हो जाएगी। इसलिए निश्चित है कि संतुलित आहार सभी के पहुंच के तक हो। भोजन का उपयोग, यानी भोजन बर्बाद न हो, इसका ध्यान रखा जाए, समुचित तरीके से उसका उपयोग किया जाए, और एक एक वस्तुओं का अपनी उपयोगिता के हिसाब से ही परचेज किया जाए। अत्यधिक मात्रा में स्टोरेज करना भी कहीं न कहीं समस्या का कारण बन सकता है। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, भोजन से संबंधित जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, सभी को जो है वह पूरे प्रॉपर ने एक सिस्टम के अनुसार पूरे देश में वितरण किया जाए, ताकि एक क्षेत्र में ज़्यादा, एक क्षेत्र में कमी ना हो। इससे भी अस्थिरता हो जाती है, इसलिए स्टेबिलिटी बना के रखना अति आवश्यक होगा। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर संतुलित आहार सभी व्यक्तियों को, सभी बच्चों को अगर नहीं मिलता है तो ये भी कुपोषण का सबसे बड़ा कारक हो सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि समुचित मात्रा में वितरण होना भोजन का, मार्केट की अवस्था को, मार्केट के जो रेट है उसको नियंत्रण में रखना, और सरकारी दुकान या इस प्रकार से इसे उपलब्ध कराना ताकि सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से मिल जाए और वो कुपोषण का शिकार न हो और एक भी व्यक्ति भूखा न रह जाए। ये सबसे बड़े आधार होने, इसलिए ये महत्वपूर्ण घटक है।
भारत में खाद्य सुरक्षा का महत्व। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO कहता है कि खाद्य सुरक्षा तब उभरती है जब हर समय सभी लोगों को अपनी आहार आवश्यकताओं और एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य वरीयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की भौतिक आर्थिक पहुंच होती है। खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है जब सभी लोगों के पास पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक आहार या पौष्टिक भोजन की भौतिक आर्थिक पहुंच होती है, जो कि एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। खाद्य सुरक्षा शब्द का उपयोग हाल के वर्षों में अधिक बार किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए महत्व पर अधिक जोर दिया है। 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA पारित किया, जो बताता है कि सभी भारतीयों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार है। NFSA दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है और 810 मिलियन भारतीय इस भोजन को खरीदने के लिए पात्र है जो इसे प्रदान करता है। इस प्रकार से ये चीज़ों को मैंने स्पष्ट किया। तो अभी आपने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने खाद्य सुरक्षा से संबंध में किया, उससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि खाद्यान्न की सुरक्षा यानी लोगों की भोजन सबसे परम आवश्यक वस्तु है और इसका समुचित व्यवस्था करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ये चीज़ें इससे स्पष्ट होती हैं कि खाद्यान्न सभी के लिए उपयोगी है और प्रत्येक लोगों का एक अधिकार के अंतर्गत है, इसलिए कानूनी तौर पर जो है वो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। और आपने देखा कि ये विश्व में सबसे बड़ी जो है वो एक्ट है जिसको भारत सरकार ने पारित किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ मिलूँगा। आप इसे देखें, पसंद करें, नोट्स तैयार करें, सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित अगर कुछ चीज़ों हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।